السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ یکسوئی کے ساتھ اور بغیر کسی پرسنل ایجنڈا کے آج ادارے مارچ کر رہے ہیں، مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، آپ سب کی محنت اور ٹیم ورک، یہی راستہ ہے، یہی فارمولا ہے اور کوئی اور فارمولا نہیں ہے کہ دن رات محنت کریں، خون پسینہ بہائیں اور مل کر کام کریں۔ معاشی بدحالی سے معاشی استحکام تک کا سفر، مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت کا پہلا سال مکمل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر قیادت کابینہ کا خصوصی اجلاس، بر وقت اقدامات سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ تمام ادارے متحد ہو کر ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہر مشکل میں ساتھ دینے والے پر اتحادیوں کا مشکور ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایک سال میں حکومت کے خلاف کرپشن کا ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا۔ دہشت گردی کا خاتمہ کیے بغیر ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری نہیں رہ سکتا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خطاب۔ پاکستان کے اگر ریزرو جو ہیں وہ آج سے ایک سال پہلے اگر $4 بلین سے 12 یا 13 بلین پہ پہنچ گئے ہیں۔ پالیسی ریٹ بینکس کا وہ 22.5% سے آج اگر 12% پہ آ گیا، اور امید کی جانی چاہیے، اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے کہ اس میں مزید اب کمی کی گنجائش ہے۔ آپ کی ایکسپورٹس بتدریج بڑھ رہی ہیں۔ رمضان پیکج کے لیے 20 ارب روپے مختص، 40 لاکھ خاندانوں کو فی کس 5,000 روپے دیے جائیں گے۔ پالیسی ریٹ اور مہنگائی میں نمایاں کمی، برآمدات میں اضافہ، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم۔ مشکل وقت میں دوست ملکوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ ہم 9 مئی والے نہیں، 28 مئی والے ہیں۔ 2035 تک پاکستان 1 ٹریلین کی معیشت ہوگا۔ نفرت احتجاج کی سیاست دفن، غزہ میں 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، جنگ بندی کے باوجود امداد روکنا افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ ایس سی او کا پاکستان میں کامیاب انعقاد بڑی کامیابی، سرمایہ کاروں کا ملکی معیشت پر اعتماد بحال ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اقدامات، غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے امداد جاری رہے گی۔ ضرب عضب کی طرح اس میں استحکام پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ حکومت اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا، عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہوا۔ مہنگائی کی شرح 1.5% پر آ گئی۔ سٹاک مارکیٹ کے کاروبار میں ایک سال میں 71% اضافہ ہوا۔ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی، ملک میں پہلی بار زرعی ٹیکس کا نفاذ، اداروں میں رائٹ سائزنگ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ حکومتی اقدامات سے تمام اداروں میں ترقی کا سفر جاری، ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار پھیلایا، مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے پر کام کا آغاز، اڑان پاکستان منصوبے کے تحت ملکی ترقی کا پروگرام دوبارہ شروع کیا۔ منصوبے پر پوری دل جمعی سے کام کیا جائے گا۔ 2018 کے بعد سی پیک کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ 2018 میں ترقی کا راستہ نہ روکا جاتا تو آج بڑی معیشتوں میں شامل ہوتے۔ امن، استحکام اور پالیسیز کے تسلسل کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا خصوصی اجلاس سے خطاب۔ عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ترجیح، توانائی کے شعبے میں اصلاحات، آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی معاہدوں سے 1,333 ارب روپے کی بچت، بجلی کی فی یونٹ قیمت 4 روپے 96 پیسے کم ہوئی۔ صنعتی اور زرعی شعبے کو سستی بجلی کی فراہمی اور آئندہ 4 سال میں گردشی قرض کا خاتمہ کریں گے، وزیر توانائی ویست خان لغاری کا خصوصی اجلاس سے خطاب۔ آئی ٹی برآمدات $2 ارب تک پہنچ گئیں۔ موبائل فون کی مقامی مینوفیکچرنگ میں اضافہ، دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی فراہمی یقینی۔
इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने के लिए 3 सबमरीन केबल बिछाई गई। हुकूमती इकदामात से ई गवर्नेंस के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 14 दर्जे बेहतर हुई। विफाकी वजीर शिजा फातिमा का विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब। हुकूमत का पहला साल मुकम्मल, कारकर्दगी बेमिसाल। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास, 1 साल की कारकर्दगी आवाम के सामने पेश। तारीख में पहली मरतबा काबीना के खुसूसी इजलास की कार्रवाई पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर हुई। खजाना, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर वजारतों की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश। खुसूसी इजलास में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की भी शिरकत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत दौरा अज़रबैजान पर जायजा इजलास। मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर जल्द अमल दरामद की हिदायत। तिजारती हुज्म $2 अरब तक बढ़ाने के लिए जामे लाहे अमल पेश करने का हुक्म। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर निगरानी कमेटी कायम। पाकिस्तान और वस्त एशियाई रियासतों के माबैन तिजारत और सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद से भरपूर फायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुस्बत माशी पॉलिसीज के समरात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 756 पॉइंट्स का इजाफा, 1,12,743 पर बंद। स्टॉक मार्केट में 11 अरब 33 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर्स का कारोबार हुआ। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, पंजाब में नया संगे मील उबूर। बरसों पुराने मराकज़ सेहत की हालत और आवाम की तकदीर बदल गई। पंजाब में दूर दराज के 750 मराकज़ सेहत यूरोपीय ममालिक के क्लिनिक का मंजर दिखाने लगे। रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर। भारत 5वीं मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से शिकस्त। कैंगरूज 264 रन पर आउट। स्टीवन स्मिथ के 73 और एलेक्स कैरी के 61 रन। मोहम्मद शामी की 3 विकेट्स। भारत ने हदफ 6 विकेट्स पर हासिल किया। विराट कोहली के 84 रन की इनिंग्स। फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से शिकस्त। इंडिया ने 4 विकेट से मैच में कामयाबी हासिल करके 5वीं मरतबा ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा दुबई में। दूसरी सेमीफाइनल का फैसला कल होगा लाहौर में, जहां साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी। दुबई में पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम्स लाहौर में आमने सामने होंगी। पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत की टीम ने 5वीं मरतबा क्वालिफाई किया है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड लाहौर में मध्य मुकाबला दिन 2 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। PCB का मैच के दौरान शायकीन को मुफ्त इफ्तार कराने का ऐलान। शायकीन स्टेडियम के अंदर फूड स्टॉल से खाने पीने की दीगर अशिया भी खरीद सकेंगे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी T20 और वनडे स्क्वाड्स का ऐलान। सलमान अली आगा T20 के कप्तान मुकर्रर, शादाब खान नायब कप्तान होंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड से बाहर। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं। दौरा न्यूजीलैंड के लिए नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। नए खिलाड़ी सामने नहीं आएंगे तो नया टैलेंट नहीं मिलेगा। हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम आकिब जावेद। T20 क्रिकेट तब्दील हो गई, कोशिश होगी नए अंदाज से क्रिकेट खेलें। कप्तान T20 टीम सलमान अली आगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों खवातीन के इस्तेमाल की घिनौनी हकीकत बेनकाब। नौजवान खवातीन को भर्ती के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल। BLA और दीगर इंतहा पसंद ग्रुप इक्तिसादी मुश्किलात और समाजी तन्हाई का फायदा उठाकर खवातीन को भर्ती करते हैं। अदीला बलूच को BLA ने ऑनलाइन जोड़ तोड़ और ब्लैकमेलिंग के जरिए जाल में फंसाया।
میں غلط راستے پر چل رہی تھی، مجھے بہکایا گیا تھا. عدیلہ بلوچ. جنوبی غزہ پر اسرائیلی حملے، 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. صہیونی فورسز نے پناہ گزین کیمپ میں متعدد گھر مسمار کر دیے. اسرائیل کی جانب سے غزہ کو امدادی سامان کی ترسیل پر پابندی. مصر، قطر اور اردن کی شدید مذمت. اقدام جنگ بندی اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی. اسپین کا بھی غزہ کو فوری امداد کی فراہمی اور مستقل جنگ بندی پر زور. امریکہ کا یوکرین کی فوجی امداد بند کرنے کا اعلان. امن کے لیے نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات تک امداد بند رہے گی. صدر ٹرمپ. امریکہ کی جانب سے کینیڈا اور میکسیکو کی برآمدات پر 25% ٹیرف عائد. چین کی برآمدات پر ٹیرف 10 سے بڑھا کر 20% کرنے کا اعلان. کینیڈا کا جوابی اقدام. امریکی برآمدات پر مساوی ٹیرف نافذ. بھارتی تاجر انکت سریواستو کینیڈا میں پراسرار سرگرمیوں میں ملوث. کئی ممالک میں بھارتی حکومت کی غیر قانونی سرگرمیوں کے ثبوت کھل کر سامنے آنے لگے. کینیڈا میں قائم بھارتی کاروباری گروپ جعلی ویب سائٹ چلا رہا ہے جس کا مقصد بھارت کے حق میں اور پاکستان کے خلاف مواد پھیلانا تھا. CSIS رپورٹ. اور برطانیہ کے شاہی قلعہ ونسر کاسل میں تاریخ رقم. پہلی بار سینٹ جارج ہال کے پروکار ماحول میں 350 سے زیادہ روزہ داروں نے افطار کیا. جیسے ہی اذان کی صدا بلند ہوئی، شاہی در و دیوار میں محبت، بین المذاہب ہم آہنگی اور رمضان کی برکتوں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا. سینٹ جارج ہال جو ہمیشہ سے سربراہان مملکت کے استقبال کے لیے مختص تھا، روزہ داروں کا میزبان بن کر تاریخ کا حصہ بن گیا. اسلامی روایات کے ساتھ شاہی تاریخ کا حصہ بننا ہمارے لیے باعث فخر ہے. افطار کے شرکاء. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ عزم استحکام نے عدم استحکام کی تمام ناپاک سازشوں کو دفن کر دیا. آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں مشکل مگر قومی مفاد میں فیصلے کرنے کی طاقت بخشی اور آج پاکستان کی معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے. اب ہم اس بات کی مکمل تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے اب پاکستان کی معیشت کو ترقی اور خوشحالی کی طرف تیزی سے آگے لے کر جانا ہے. اب ہمیں بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ترقی اور خوشحالی کی یہ گاڑی اب دوبارہ کبھی ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان زندہ باد. لالا سنبھل کے. دیکھ کے بھائی، ایک غلطی اور گیم اوور. ہر موڑ پہ خطرے ہزار، ہر میچ آریا پار. ICC چیمپئنز ٹرافی شروع 19 فروری سے. درست ہر وقت بر وقت.
नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि अज़्म इस्तेहकाम ने अदम इस्तेहकाम पैदा करने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया है। गुज़श्ता एक साल में सियासी, माशी और सफारती मैदान में कामयाबियां हुकूमती कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए खारिज का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। तफसील बता रहे हैं असद यार खान। मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा पेश किया गया। गुज़िश्ता एक साल माशी बदहाली से माशी इस्तेहकाम का सफर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने माशी इस्तेहकाम के असूल को टीम वर्क और शबाना रोज मेहनत का नतीजा करार दिया। उन्होंने इत्तेहादी जमातों के कायदीन की हमायत और ताउन का भी शुक्रिया अदा किया। तारीख में पहली मर्तबा यकसुई के साथ और बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के आज इदारे मार्च कर रहे हैं, मिलकर हाथों में हाथ मिलाकर। तो ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम, आप सबकी मेहनत और टीम वर्क। IMF से 7 अरब डॉलर के कर्ज के असूल में दोस्त मुल्कों के ताउन का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सऊदी अरब ने 1.2 अरब डॉलर के तेल की अदायगी एक साल के लिए मौखर की। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2 अरब डॉलर के कर्ज की अदायगी को रोल ओवर किया। आज मुल्क में महंगाई की शरह गुज़िश्ता 9.5 साल की कम तरीन सतह पर है। डार साहब को दुगनी मुबारक दी कि इनके ज़माने में 2018 में जो इन्फ्लेशन थी वो 3.5% थी। अब माशाल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, अपना रिकॉर्ड बीट कर दिया, आज 1.6% है। पाकिस्तान के अगर रिजर्व जो हैं वो आज से एक साल पहले अगर $4 बिलियन से 12 या 13 बिलियन डॉलर पर पहुंच गए हैं। पॉलिसी रेट बैंक्स का वो 22.5% से आज अगर वो 12% पे आ गया, और उम्मीद की जानी चाहिए, स्टेट बैंक का इख्तियार है कि इसमें मजीद अब कमी की गुंजाइश है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान आगे बढ़ने का रोड मैप है। तरक्की व खुशहाली की मंजिल के असूल के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। ये तरक्की और खुशहाली का सफर तभी इसमें तेजी आएगी, तभी उड़ान पाकिस्तान बनेगा, जब तक हम इस मुल्क के अंदर जो खवारिज हैं, जो दहशतगर्द जो हैं, उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं कर देते। वजीर आजम ने कहा गवर्नेंस के निजाम को डिजिटाइज और करप्शन का खात्मा कर रहे हैं। अदालतों में 4000 अरब रुपए के महसूलात से मुतल्लिक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाया जाएगा। इस हवाले से 23 अरब रुपए के महसूलात की रिकवरी खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि सरकारी मलकियती इदारों का 850 अरब रुपए का खसारा कौमी खजाने पर बोझ है। डिस्कोर्स में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के साथ मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करना है। 9 मई के हमलों के हिस्सेदार हम नहीं, हम 28 मई के नंबरदार हैं। हमें इंशाअल्लाह 2029 तक पाकिस्तान को 60 अरब डॉलर बरामदात करने वाला मुल्क बनाना है। विजन 2035 में हमने इंशाअल्लाह 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है हमने पाकिस्तान को। सबसे बढ़कर हमें जिद, नफरत और एहतजाज को दफन करना है, मुफाहमत और प्यार और मोहब्बत को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी व तरक्की एहसन इकबाल और वजीर इतलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को एक साल की हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। माशी इस्तेहकाम की मंजिल के असूल के बाद बरामदात, सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों का फ़रोग़ अब हुकूमत की तरजीह है ताकि शरह नमू में इजाफा किया जा सके। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत ने एक साल में माशी कामयाबियों के साथ सफारती सतह पर भी अहम कामयाबियां समेटी हैं। तफसील मोहम्मद नवीद असहर से। हुकूमत की एक साल कारकर्दगी से मुतल्लिक काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हुआ है और हुकूमत की कामयाब सफारती पॉलिसियों से इक़वाम आलम में वतन अजीज़ की अहमियत में इजाफा हुआ। इस वक्त UN सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर जो चुना गया वो 182 के मुकाबले में 5 वोट सिर्फ मुखालिफ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी आपकी क़यादत में एक अचीवमेंट थी। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने भरपूर कामयाबियाँ हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि SCO का कामयाब इनेकाद, बच्चियों की तालीम से मुतल्लिक इस्लामाबाद में कामयाब कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस खित्ते की बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका इवेंट इसी हॉल में मुनक्कद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए 9 मुल्कों के और साथ
कुछ मुल्कों के वज़ारे ख़ारजा और उनके डेलीगेशन। तो ये बहुत बड़ा इवेंट 27 साल के बाद पाकिस्तान ने देखा। इंटरनेशनल गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस की गई, वो सेकंड एक सक्सेसफुल इवेंट एक साल आपके इस टेन्योर में गिना जाता है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए इक़दामात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ज़रब अज़्म की तरह अज़्म इस्तेहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से तमाम इदारों में तरक्की का सफ़र जारी है। उन्होंने कहा कि मस्बत तनकीद का खैर मकदम करते हैं। माशी दहशत गर्दी, सियासी दहशत गर्दी, उसका भी मुकाबला कर रहे हैं और साथ जो दहशत गर्दी हमारे मुल्क के दुश्मन जो हैं, जिनको यहाँ पे ला के बसाया गया हज़ारों की तादाद में कि ये हमारे एसेट होंगे, उसका मुकाबला भी हम कर रहे हैं कि हमारी सिमत दुरुस्त है, सफ़र का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि 2018 में अगर तरक्की का रास्ता ना रोका जाता तो हम आज बड़ी मुआशतों में शामिल होते। हमारे पास 2018 तक 5 साला मनसूबा भी था, विजन 25 भी था। 2018 और 22 के दरमियान इन सब को मतरूक कर दिया गया एंड फॉर 4 years वी लिव्ड इन अ नॉन प्लान पीरियड। अब हम इन तरजीहात को ठीक कर रहे हैं और उड़ान पाकिस्तान की सूरत में एक रोड मैप भी है। पाकिस्तान इज वेल ऑन इट्स वे ऑफ टर्न अराउंड। वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि सी पैक के मंसूबे की वजह से बैरूनी सरमायाकारी आई है। उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबे पर पूरी दिलजमी से काम किया जाएगा। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्की मईशत को दुरुस्त सम्त में गामजन करने के हवाले से तमाम वफाकी वज़रा ने अपनी अपनी कारकर्दगी की 1 साला रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। मुल्की तरक्की का खुशहाली की जानिब सफ़र तेज़ी से गामजन, लड़खड़ाती मईशत से खुशहाली तक का सफ़र। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना का खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वजारतों की कारकर्दगी का जायजा पेश किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपनी कारकर्दगी का जायजा पेश करते हुए कहा कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत इक़्तिसादी इशारे मुस्बत हैं। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इजहार किया है। इन्फ्लेशन लेटेस्ट फिगर इज 1.5%, दिस इज लोएस्ट इन 9.5 years। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 47,000 पॉइंट्स में उसका इजाफा हुआ है। 52,000 न्यू इन्वेस्टर्स हैव कम इनटू द स्टॉक एक्सचेंज। डेट टू जीडीपी इज नाउ क्लोज टू 67.5% और पहली दफा गवर्नमेंट ने अपना डेट बाय बैक किया है। द करेंसी इज स्टेबल एंड दिस इज ऑल ऑन द बैक ऑफ गुड ग्रोथ ऑन द एक्सपोर्ट साइड, बट ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग performance in terms of the remittances। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया कि अवाम को सस्ती बिजली फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। गुज़िश्ता 1 साल में बिजली के निर्खों में कमी लाई गई। फर्नस ऑयल पर चलने वाले IPPs का खात्मा किया गया। 2400 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे के मुकम्मल खात्मे के प्रोग्राम पर अमल पैरा है। आइंदा जितनी भी इजाफी बिजली सिस्टम में ली जाएगी वो कंपटीशन के जरिए प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे से खरीदेगा, जिसका फायदा सार्फिन को इंशाल्लाह जी पहुंचेगा। इंडस्ट्री का रेट जो जून 2024 में था आज उससे 11 रुपए और 69 पैसे कम हो चुका है। इन महंगाई के हालात में भी हमने स्पेशल इंसेंटिव पैकेजेस निकलवाए। वज़ीर IT शिज़ा ख्वाजा फातिमा ने 1 साल की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए बताया कि गुज़िश्ता 1 साल में इंटरनेट की फराहमी और उसके फैलाव को यकीनी बनाया गया। 1 साल में 15 मिलियन इंटरनेट सारिफिन का इजाफा हुआ, जिससे 817 मिलियन से लेकर 955 मिलियन तक रेवेन्यू में इजाफा हुआ। माली साल के 2025 के पहले महीनों में IT एक्सपोर्ट में 27% इजाफा हुआ। We were able to effectively advertise and campaign for Pakistan globally. So we run 8 national incubation centers. They were able to raise 1.37 billion worth of revenue. We were able to make very strong collaborations with some of our friendly countries under your leadership and guidance. And this year Pakistan will be hosting, along with DCO and World Economic Forum, the world's first digital FDI forum in April. ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद नज़ीर ने 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए वज़ीर आज़म को बताया कि मुश्तरका मंसूबों के तहत आपाशी के जदीद तरीके काबिल अमल बनाए गए हैं। सेक्रेटरी SIFC जावेद कुरैशी ने बताया कि बलूचिस्तान में स्किल्स प्रोग्राम के तहत मादनियात के मुख्तलिफ सेक्टर्स में 9,000 से ज़ायद अफराद को ट्रेनिंग दी गई। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के प्रोग्राम के तहत अब तक 400 से ज़ायद तलबा को ट्रेन किया गया है।
सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा ने बताया कि हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिविल और अस्करी ताउन के तहत स्मगलिंग का खात्मा किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने इस अज़्म का इजहार किया कि 500 अरब रुपए के महसूलात से मुतालिक अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाया जाएगा। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गुज़िश्ता एक साल में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत ने माशी, सफारती और समाजी शोबों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। तफसील इस खुसूसी रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुतहर्रिक क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल में जहां माशी मैदान में अहम कामयाबियां समेटी, वहीं सिफारती महाज पर भी कई अहम संगे मील उबूर किए। हुकूमत के पहले साल में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत हुकूमत को माशी मैदान में बड़े चैलेंजेस दरपेश थे, जिसके लिए बड़े और मुश्किल फैसले दरकार थे। IMF से 7 अरब डॉलर्स का वसूल, मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स इस्लाहात और FBR डिजिटाइजेशन जैसे अहम इक़दामात की बदौलत एक साल के कलील अरसे में हुकूमत ने माशी इस्तेहकाम की मंजिल हासिल की। अफरात-ए-ज़र की शरह 40% से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई है। PTI का 8.9% का मालियात खसारा कम होकर 2% पर आ गया है। PTI के दौरे हुकूमत के पहले साल में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 844 मिलियन डॉलर्स की कमी हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून के पहले एक साल में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 20% इजाफे के साथ 1.329 अरब डॉलर्स तक पहुँच गयी। PTI के पहले साल की 21.8 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पहले साल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 30 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाए। ज़र मुबादला के ज़खायर पहले साल 13 अरब डॉलर से बढ़कर 16.4 अरब डॉलर्स हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो पॉलिसी रेट उस वक्त की 22% की इंतहाई सतह को छू रहा था, जो एक साल में कम होकर 12% पर आ चुका है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, तिजारती खसारे में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस और माशी महाज पर अहम कामयाबियों की बदौलत ब्लूमबर्ग, मूडीज और फिच जैसे बड़े आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। KS 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज हासिल किया। मईशत की मजबूती, पायदार तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज किया गया। पाकिस्तान को PTI दौर की आलमी तन्हाई से छुटकारा मिला और दुनिया के बड़े मुल्कों ने पाकिस्तान की इलाकाई, जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत का भरपूर एतराफ किया। रूस और चीन समेत खित्ते के 10 अहम मुल्कों पर मुश्तमिल शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास इस्लामाबाद में हुआ। लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए मुस्लिम मुल्कों पर मुश्तमिल आलमी कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में पुरवकार इनेकाद अहम सिफारती संग मील ठहरा। पाकिस्तान को दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट की मेजबानी का एजाज हासिल हुआ। 3 दहाइयों बाद पाकिस्तान में ICC चैंपियन ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान अहम आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ रहा। एक साल में 2 दर्जन से ज़ायद गैर मुल्की सरबराहाने हुकूमत ने पाकिस्तान के दौरे किए और पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने में खुसूसी दिलचस्पी ज़ाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक के अहम दौरे किए और दुनिया के बड़े मुल्कों के साथ मजबूत इक़्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद रखी। विजन सेंट्रल एशिया के साथ चीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के मुआहदे किए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली, D8 सरबराह इजलास, COP29, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, अरब इस्लामिक समिट समेत आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा भरपूर और दो टोक अंदाज में पेश किया। It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. India must reverse the unilateral illegal measures and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute. आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आवाज़ पर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब का मुकम्मल बायकॉट किया। यकसा तालीम और तरक्की के आज़म के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में दानिश स्कूल्स के क़याम के तेज तरीन और जामे मंसूबे का आगाज किया। आला तालीम के फरोग के लिए वसाइफ और सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात हुकूमती पॉलिसियों का महवर ठहरे। एक साल के कलील अरसे में तेज तरीन तरक्की ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर चुकी। दूसरे साल का आगाज ठोस और पायदार तामीर और तरक्की के आज़म के साथ हो रहा है।
آپ سے ملاقات ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک کرم کی نظر ہو میری بچی، افطاری میں کیا کھاؤ گی؟ ابو میں تو پکوڑے کھاؤں گی. صدا مجھ کو تیری طلب رکھ لو میرا بھرم، مجھ کو جھکنے نہ دے ہے دعا. برکتوں کے راستے آسا ہوا رمضان، آسا ہوا رمضان، آسا ہوا رمضان، آسا ہوا رمضان. لگتا ہے آج دیہی بہت اچھی لگی ہے. یہ تو وزیر اعظم نے ہمارے لیے رمضان کا تحفہ بھیجا ہے. وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج گزشتہ سال سے 3 گنا زیادہ رقم، 20 ارب روپے، ملک بھر سے 2 کروڑ سے زائد افراد پر مشتمل 40 لاکھ مستحق خاندانوں کے موبائل والیٹ میں شفافیت کے ساتھ براہ راست منتقل کیے جا رہے ہیں. مستحقین کو 5000 روپے کی ترسیل کا معلوماتی پیغام صرف 9999 سے بھیجا جائے گا. وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج، آپ آسانیاں بانٹیں. درست ہر وقت بار وقت. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں ان کے حالیہ دورہ آذربائیجان کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ باکو میں ہونے والے مشترکہ بزنس فورم میں پاکستان کی 83 اور آذربائیجان کی 101 کمپنیز نے شرکت کی. وزیر اعظم کے دورے میں پاکستان اور آذربائیجان کے مابین تعاون کے فروغ کے حوالے سے 13 مفاہمتی یادداشت اور معاہدوں پر دستخط ہوئے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مفاہمتی یادداشت اور معاہدوں کو جلد عملی جامہ پہنانے اور وزارت تجارت کو پاکستان اور آذربائیجان کے مابین موجودہ تجارت کا حجم $2 ارب تک پہنچانے کے لیے جامع عمل پیش کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعظم نے آذربائیجان کے صدر کی جانب سے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کے اعلان کے حوالے سے نائب وزیر اعظم کی زیر نگرانی کمیٹی قائم کی ہے. کمیٹی توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں معاہدوں کے لیے تیاری یقینی بنائے گی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر کے آئندہ ماہ متوقع کے دورہ پاکستان سے پہلے ترجیحی بنیادوں پر تمام تر تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کی وسیع استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ترجیحی اقدامات کر رہے ہیں. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کے زیر صدارت ضروری زرعی فصلوں کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا. اجلاس میں گندم کی قلیل اور طویل مدتی کاشت کی حکمت عملی پر غور کیا گیا. اس موقع پر کسانوں اور صارفین کے مفادات کے مطابق تحفظ خوراک کے لیے وفاق اور صوبائی سطح پر کاوشوں پر بھی بات چیت کی گئی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے IMF کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات میں ملک کی موجودہ معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خزانہ حکومتی معاشی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ IMF وفد کی قیادت نیتھن پورٹر کر رہے ہیں. SIFC کے تعاون سے وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے مثبت اقدامات جاری ہیں. اس سلسلے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا آذربائیجان اور ازبکستان کا دورہ معاشی استحکام اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت کے طور پر سامنے آیا ہے. دونوں ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں. مشترکہ منصوبوں کی بدولت ٹیکسٹائل، زراعت و دوا سازی کے شعبے میں ترقی ہوگی. ازبکستان میں پاکستانی مصنوعات کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور چاول اور تل کے بیج، ملبوسات اور کھیلوں کا سامان وسیع پیمانے پر برآمد
बरामद किया जा रहा है। दोनों ममालिक मुश्तरका मंसूबों के तहत 130 मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके से इस्तेफादा कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेल रोड प्रोजेक्ट खित्ते की तिजारत के लिए अहम संग मील है, जिसकी जल्द तकमील के अज़्म का इरादा किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन दो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर भी बातचीत हुई है, जिसमें तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। मुस्तहकम और पायदार मुसाबकती कमीशन का क़याम हुकूमत के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म की अलामत है। इन ख्यालात का इज़हार नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा ने मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब में किया। तफसील बताएंगी नमरा सुहेल। इस्लामाबाद में मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेडक्वार्टर का संग बुनियाद नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने रखा। तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि मुसाबकती कमीशन पाकिस्तान में मजबूत मईशत और पायदार मुस्तक़बिल का अहम तरीन हिस्सा है। क्या चीज़ की ज़रूरत है? द कार्टेल्स वर्ल्ड ओवर हैव टू बी टेकन हेड ऑन, और यही पाकिस्तान की ज़रूरत थी और इसीलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बनाया गया था। इफ़ यू हैव टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड, बिलीव मी, दिस कंट्री हैज़ ग्रेट रेजिलियंस। द ऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फेल इन प्लेस. The foreign exchange reserves make a new highest record, which is still in place. Overall inflation fiscal year की 17-18 की came 3.59. We will together celebrate in next few years कि Pakistan inshallah will reach a very proper place in the international arena. तकरीब से खिताब में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़ और अली परवेज़ मलिक ने कहा कि मुसाबकती कमीशन बकौर रेगुलेटरी इदारा निहायत अहमियत का हामिल है। We are in a good place with respect to macroeconomic stability. The structural reforms are underway. Now where do we go from here? And that's where we need to ensure that this time the opportunity that we have, we use it prudently, we use it wisely for sustainable and inclusive growth, inshallah, as we go forward. I pray that new building would be a mark and a feather in your cap, but as you said, the capacity building is also one of the most important things. तो इस दुआ के साथ कि दोनों काम साथ साथ चले, इमारतें भी खूबसूरत और लोग भी अच्छे। CCP as a regulator is extremely important as we transition from a more regulated to a private sector-led economy. So this is one of those regulators which has to protect against market efficiency, push on the economic efficiency parameter, and to guard consumers against collusion and market failure. चेयरमैन CCP डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू ने मुसाबकती कमीशन के नए हेडक्वार्टर्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने शुरका को बताया कि CCP मुस्तकबिल में मुल्क के दीगर बड़े शहरों में भी अपने दफातर कायम करेगा। तकरीब में साबिक चेयरमैन CCP, पॉलिसी साजों, बिजनेस कम्युनिटी और CCP के आला हुक्काम ने शिरकत की। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे के 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मरम्मत और बहाली की असूली मंजूरी दी गई। तफसील वर्दा सलीम से। सरजमीन पाकिस्तान अपने अंदर सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत के रंग समेटे हुए है। वादी सिंध की कदीम तहजीब हो या 2000 साल कबल मसीह का तारीखी मरकज हड़प्पा, टेक्सला, तख्त बाई, लाहौर का तारीखी शाही कला, शालामार बाग, बादशाही मस्जिद, कला रोहतास और इस जैसे दर्जनों तारीखी मकामात न सिर्फ अहद रफ्ता की शानदार अलामतें हैं बल्कि तारीख के कई राज भी आश्कार करते हैं। पाकिस्तान के इस अहम कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बहाली के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर और मरम्मत और बहाली की असूली मंजूरी दी गई। पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबे की पहली मुकम्मल टूरिज्म ऐप तैयार की गई है, जिसके जरिए 170 सियाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। इस ऐप का जल्द आगाज होगा। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सूबे के सियाहती मकामात को आलमी मियार के मुताबिक बनाना चाहते हैं। पंजाब को सियाहती हब बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की
पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की असूली मंजूरी और सूबे के सबसे बड़े और जामे टूरिज्म प्लान की भी मंजूरी दी। आज जो वज़ीर आला साहिबा ने इजलास किया और उसमें टूरिज्म के बारे में जो भी फैसले किए हैं, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान में टूरिज्म की तरक्की के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। पंजाब में पहली मर्तबा टूरिज्म ट्रेल भी तैयार की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट माल रोड, वॉल सिटी ऑफ लाहौर, सिक्स साइड, GT रोड की मुगल यादगारें, सॉल्ट रेंज, गुजरांवाला, एमनाबाद के सिख टूरिज्म ट्रेल में शामिल होंगे। इजलास में फैसला किया गया कि मुख्तलिफ शहरों के सियाहती मकामात को टूरिज्म क्लस्टर के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जबकि छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क और लाल सुहानरा नेशनल पार्क को इको टूरिज्म के फरोग के लिए डेवलप करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अवाम के लिए सेहती शोबे में किए गए इक़दामात काबिल तहसीन हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशों से पंजाब के 750 मराकज़ सेहत यूरोपीय ममालिक के क्लिनिक्स का मंजर पेश कर रहे हैं। रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने वाले जदीद तरीन मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का इंतजाम यंग डॉक्टर्स के सपोर्ट कर दिया गया है। पुराने मराकज़ सेहत की तज़ीन व आराइश के अलावा वहाँ जदीद तिब्बी आलात भी फराहम कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी ने साबिक सूबाई वजीर अब्दुल्ला बलोच से उनके बेटे इब्राहिम बलोच के इंतकाल पर ताज़ियत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी ने इब्राहिम बलोच की हमशीरा रुकने कौमी असेंबली नाज बलोच और इब्राहिम बलोच के भाई सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच से भी ताज़ियत की। उन्होंने सोगवारान से ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी से सेनेटर शेर रहमान ने कराची में मुलाकात की। इस मौके पर मुल्की सियासी सूरत हाल समेत ईवान बाला में कानून साजी से मुतालिक बातचीत हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से लाड़काना शहर के मेयर अनवर लहर ने मुलाकात की और उन्हें लाड़काना की तरक्की और अवाम के मसाइल के हल के हवाले से इक़दाम से आगाह किया। इत्तलात और नशरियात के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन भुलेन बलोच की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कायमा कमेटी ने मुल्क भर में रेडियो पाकिस्तान की किराए पर दी जाने वाली इमारात के किराए मार्केट की शरह के बराबर लाने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन में करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में हुकूमत के साथ अपोजिशन के अरकान को भी बराबर वक्त दिया जाता है। अब करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में तमाम जमातों की नुमाइंदगी होती है। उन्होंने कहा कि PTV में नए एंकर्स की शमूलियत से स्क्रीन बेहतर हुई है और इश्तिहारों की मद में 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए DG रेडियो ने बताया कि रेडियो पाकिस्तान मुकामी ज़ुबानों समेत बैनुल अक़वामी ज़ुबानों में भी प्रोग्राम नशर करता है। और अब कुछ खबरें ICC चैंपियंस ट्रॉफी की नॉकआउट स्टेज की। जोर से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कौन हारे कौन जीते कोई भी ना जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। खेलने आए हम, खेलने आए पूरी तैयारी से, हम जिम्मेदारी से खेलने आए, खेलने आए गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। खेलों की खबरों में खुशामदीद और बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। भारत 5वीं मरतबा ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दी। 84 रन की इनिंग्स खेलने वाले विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। फाइनल मैच 9 मार्च को दुबई में होगा। पहले सेमीफाइनल की तफसील बता रहे हैं ज़ीशान कय्यूम। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, ताहम उसकी टीम 49.3 ओवर्स में 264 रन बनाकर आउट हो गई। ओपनर कूपर कोनोली 0 पर अपनी विकेट खो बैठे। भारत के लिए खतरे की अलामत। ट्रेविस हेड ने जारहाना खेल पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो 39 रन बनाने के बाद कैच आउट हुए। ट्रेविस हेड ने 2 छक्के और 5 चौके लगाए। A lot of time to play that shot in that bilateral series. Straight back. There is a fielder there. The catch is taken. मार्नस लाबुशेन 29 और जोश इंग्लिश 11 रन बना सके। Catching. Oh, and the wicket. कप्तान स्टीवन स्मिथ ने वनडे कैरियर की 35वीं निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 73 रन बनाने के बाद बोल्ड हो गए। एलेक्स कैरी ने 61 रन की इनिंग्स खेली। Oh, lovely shot. I just said he was playing the field.
Oh, lovely shot. भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 3 विकेटें हासिल की। वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। Swings again. This time Kohli takes it. He's bowled it. It's all over. 264 in his setup. भारत ने 265 रन का हदफ 48.1 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। Oh, dragged on. An inside edge. Oh, that's close. The finger's gone up. It looked out. विराट कोहली और शेरियास अय्यर ने तीसरी विकेट की शिराकत में 91 रन का इजाफा किया। शेरियास अय्यर 45 रन बनाकर बोल्ड हुए। तजुर्बाकार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक मर्तबा फिर जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए 84 रन की इनिंग्स खेली। उनके वनडे कैरियर की ये 74वीं निस्फ सेंचुरी है। कोहली की इनिंग्स में सिर्फ 5 चौके शामिल थे। अक्षर पटेल ने 27 रन जोड़े। दो मरतबा टाइटल जीतने वाला भारत मजमूई तौर पर 5वीं मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलेगा। मेगा इवेंट का फाइनल 9 मार्च को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। Down the track, finish it off with a 6. अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बन्नू कैंट पर फितनतुल खवारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया गया है। अहम खबर आपको आगाह कर रहे हैं। बन्नू कैंट पर फितनतुल खवारिज की दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया गया है। आज इफ्तार के बाद दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की नाकाम कोशिश की, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों के बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सिक्योरिटी जराये का ये बताना है कि बरवक्त कार्रवाई से बन्नू कैंट के बाहर घबराहट में दहशतगर्दों ने 2 बारूद से भरी हुई गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। 6 ख्वारिज को मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद चौकस सिक्योरिटी अमले ने जहन्नुम हासिल कर दिया, जबकि बाकी मानदा दहशतगर्दों को महसूर कर लिया गया है। दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ियों के धमाके से करीबी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा और करीब के घर की छत मुनहदिम होने से मासूम लोगों के जख्मी और शहादतों की भी इत्तलात हैं। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज का तमाम खारिजियों को सिफाया तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बन्नू कैंट पर फितनतुल खवारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिजियों के बन्नू कैंट में हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया। बर वक्त कार्रवाई की गई, जिससे बन्नू कैंट के बाहर घबराहट में दहशतगर्दों ने 2 बारूद से लदी हुई गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। ऐसा बताना है सिक्योरिटी जराये का। 6 खवारिज को मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद चौकस सिक्योरिटी अमले ने जहन्नुम वासिल कर दिया है और बाकी मानदा दहशतगर्दों को महसूर कर लिया गया है। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपसे बेहतर कौन जानता है कि अज़्म इस्तेहकाम ने अदम इस्तेहकाम की तमाम नापाक साजिशों को दफन कर दिया। आज हम सब अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि जिसने हमें मुश्किल मगर कौमी मफाद में फैसले करने की ताकत बख्शी और आज पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। अब हम इस बात की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं कि हमने अब पाकिस्तान की मईशत को तरक्की और खुशहाली की तरफ तेज़ी से आगे लेकर जाना है। अब हमें बहैसियत कौम ये फैसला करना है कि तरक्की और खुशहाली की ये गाड़ी अब दोबारा कभी डिरेल नहीं होने देंगे। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है
चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। खेलों की खबरों में एक बार फिर से खुशामदीद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। कज़ाफी स्टेडियम में होने वाला मैच दिन 2 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियों के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मौज़मुद्दीन। धड़के दिल जोर से धड़के, देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले जारी हैं और अब बारी है दूसरे सेमीफाइनल की। बड़े मैच से कबल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में अपनी तैयारियों को खत्मी शक्ल दी और भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले मैच की शिकस्त को भुलाकर अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे और फाइनल में जगह बनाएंगे। We've got experience here on the surface. We know South Africa shape up well, but I think it's obviously a knockout. It's just whoever can turn up on the day, and hopefully that's us tomorrow. साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाबुआ ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम एक मजबूत टीम है। फाइनल में जगह बनाने के लिए पूरी टीम को अच्छा खेलना होगा। We understand New Zealand will obviously come with a certain challenge and we'll have to prepare accordingly, but I think Marco said it, it's just another game for us. Yes, it's important, but we definitely won't be blowing it out of proportion. It's a semi-final. We want to play our best cricket. कज़ाफी स्टेडियम में मैच के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हेड टू हेड मुकाबलों में दोनों टीमें एक एक जीत के साथ बराबर हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी बार आमने सामने होंगी। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम T20 और वनडे स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया है। दोनों स्क्वाड्स में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। सलमान अली आगा T20 टीम की क़यादत करेंगे, जबकि शादाब खान नायब कप्तान होंगे। वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ही रहेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड से बाहर हो गए, जबकि हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले हसन नवाज, आकिफ जावेद, मोहम्मद अली और अब्दुल समद कौमी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए। ओपनर्स फखर जमान और साइम अयूब को अनफिट होने के बायस दोनों फॉर्मेट्स के लिए ज़ेर गौर नहीं लाया गया। आकिफ जावेद दौरा न्यूजीलैंड में उबूरी हेड कोच रहेंगे, जबकि मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया है। दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला T20 इंटरनेशनल 16 मार्च को क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। वनडे सीरीज का आगाज 29 मार्च से होगा। और नाज़रीन, यहाँ आपको आगाह करें, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ज़मीनों और कारोबार पर गैर मकामी इदारों के बढ़ते हुए कंट्रोल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और ख़बरदार किया है कि ये इकदाम जम्मू और कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की सोची समझी साजिश हैं। KMS के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में पहलगाम जैसे मशहूर सियाहती मकामात पर बड़े होटल्स की तामीर के नाम पर गैर मकामी हिंदुओं की तरफ से ज़मीनों की खरीदारी का हवाला दिया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि गैर मकामी अफराद को अराजी की फ़रोख्त की मुखालफत करने वाले मकामी सरकारी अफसरों का तबादला कर दिया जाता है या उन्हें वापस OSD बना दिया जाता है। मकबूजा इलाके के सियासी जमातों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कश्मीर असम्बली से खिताब पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में दफ़ा 370 की मंसूखी का जिक्र तक नहीं किया। वो जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के बारे में कोई मुयना वक्त देने में नाकाम रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर तनकीद करते हुए कहा है कि मनोज सिन्हा की तकरीर में कोई नई चीज़ नहीं थी। उन्होंने मकबूजा इलाके में बीजेपी के गैर आईनी इक़दाम को जायज़ करार देने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी तनकीद का निशाना बनाया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के सरबराह वोल्कर तुर्क ने मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। जनीवा में इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब करते हुए उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में काले कवानीन के इस्तेमाल, इंसानी हकूक़ के लंबरदारों और सहाफ़ियों को हिरासा करने और उनकी गिरफ्तारियों की मजम्मत की। इस खिताब पर अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के सफ़ीर अपने मुल्क का दिफा करने में नाकाम रहे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है।
آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -7، کالام، کوئٹہ، زیارت -4، مالم جبہ، مری -3، استور اور پاڑا چنار میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہت شکریہ قدیر آپ کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔